Basic principles of curriculum, these are the principles which we worry about and we think about that कौन से असूल हैं कि हमें सामने रखने चाहिए जब हम करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस करते हैं। आइए देखते हैं कि हम इन प्रिंसिपल्स में आज क्या देखते हैं। Remember that we have been asking this question right from the beginning that what kind of educational purposes a school should seek to attain, यानी वो कौन से objectives हैं जो एक स्कूल को अटेन करने के लिए एजुकेशनल प्रोसेस के ज़रिए कोशिश करनी चाहिए। हम देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं और हम ये डिसाइड कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम में शामिल करने चाहिए। आपको ये भी याद होगा कि हमने मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देखी जहाँ पर हमने कोशिश की कि हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें लर्नर्स से एंड बाय स्टडिंग लर्नर्स themselves. We looked at contemporary life issues and aspirations of the people in contemporary life, and then we suggested certain objectives. Then we looked at subject specialist reports and commission reports of subject specialists, and then said that these are the kind of objectives we can include in the curriculum. The fourth was the philosophy of learning which a country, a nation is following, and it can be used as an important source for suggesting objectives for curriculum development. Fifth source of information is use of psychology, and here what I mean is psychology is psychology of learning and how this knowledge can be helpful in further selecting the objectives which we had gathered from the sources, 4 sources in the beginning, and this is the fifth source of information जहाँ पर हम further sifting और selection का process कर सकते हैं और फाइनल फैसला कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम में शामिल करने चाहिए। Again, certain questions, and these are the same questions we have been asking, that what educational objectives should school try to attain? How many objectives a school should try to achieve or can achieve in an educational year or an academic year? And then how many objectives should try to achieve? कितने हम हासिल कर सकते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स हमें हासिल कर लेने चाहिए एक एकेडमिक ईयर में, ये वो तमाम सवालात हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए और हम बीइंग एजुकेशनिस्ट पूछ सकते हैं। Now, important suggestions about the objectives, हमने देखा पहले भी कि हम ये चाहते हैं कि एक तो ऑब्जेक्टिव्स का नंबर बड़ा ही कम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि बहुत सारे लातादाद ऑब्जेक्टिव्स हम शामिल कर लें जो एक एजुकेशनल ईयर में हासिल नहीं किए जा सकते। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि वो ऑब्जेक्टिव्स हम सेलेक्ट करें जो कंसिस्टेंट हों और एक दूसरे को सप्लीमेंट करें और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हों। हम हर छोटे और बड़े ऑब्जेक्टिव्स को शामिल नहीं कर सकते। वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव ए limited list of objectives. They should be clear and concise, and then they should be consistent with each other, and they should not be in conflict with each other. These are the things which we worry about again and again while we are conducting the process of curriculum development. Next important question is that how to eliminate unimportant questions. जब हम elimination की बात करते हैं कि हमने अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरह से निकालना है जो ज़रूरी नहीं है पढ़ाना। सेकेंडली इज़ कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को निकाल दें जो इनकंसिस्टेंट हों हमारी उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स से जो हमने इकट्ठी की थी तमाम 3 सोर्सेज से, लर्नर्स themselves, contemporary life issues and aspirations of people. Third was from the reports of subject specialists. We had sifted these objectives by using philosophy of learning from any school or from any nation, और हमने इनको सिफ्ट एंड सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स का नंबर कम हो गया। सो ये सवाल हम फिर से उठा रहे हैं जब हम फिलोसॉफिकल नॉलेज के बाद लर्निंग साइकोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर सेलेक्ट करने के लिए। आपने देखा कि पहले स्टेप में जब हमारे पास 3 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ गई, मैं रिपीट कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन वाज फ्रॉम लर्नर्स themselves, फ्रॉम कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड फ्रॉम दी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स। हमारे पास
एक हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्टिव्स की कलेक्शन आई और इस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, स्कूल फिलॉसफी को हमने एज ए स्क्रीन इस्तेमाल किया और हमने देखा कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी फिलॉसफी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या हमारी फिलॉसफी के साथ मैच नहीं करते, हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे से बिल्कुल फारिग हो गए और अब हम इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सो वी हैव सिंपली कट देम आउट। नाउ वी आर लेफ्ट विद द selected objectives which are in line with our philosophy of education and philosophy of the school. Remember, we are using school philosophy or any nation's philosophy as one of the screen in this case, and we are saying that this can serve as one of the sieve that we can select the objectives of our choice and then we can discard the rest ones. Now let's look at that how we can use learning psychology as another screen for further sifting and selection of objectives which we had gathered from the sources, and we had used this process कि हमने philosophy of school को इस्तेमाल किया as screen 1 और अब हम step 2 में learning psychology को इस्तेमाल करने जा रहे हैं as screen 2 और as a sieve। हमने एक छलनी की तौर पर इसको इस्तेमाल किया और अगेन हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को निकाल दिया जो कंसिस्टेंट नहीं थे लर्निंग साइकोलॉजी की नज़र से, और हमने सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव्स को अलग कर लिया जो फिजिबल हैं या जिनको हम अटेन कर सकते हैं, एंड दे आर कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव्स which can be achieved in a school year. So we have used these two sieves and we have decided that we want to have all these objectives we have been passed through successfully through two sieves or through screens. One is learning psychology and the other is philosophy of learning of any school or any nation जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए कि हम यहाँ पर जनरली एक बात कर रहे हैं। जब आप अपने मुल्क में अपने लिए करिकुलम डेवलप करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स को सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपने अपनी लर्निंग साइकोलॉजी को सामने रखना है और अपनी लर्निंग फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आप ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट कर शिफ्ट कर लेंगे। नाउ यू हैव the objectives in this basket which are well sifted and selected by using two screens. One is philosophy of learning, second is learning psychology. अब आप इन objectives का क्या करें जो आपके पास आ गए। हमारे पास एक short list of objectives आ गई है जो consistent भी हैं, feasible भी हैं, और ये वो objectives हैं जो आप स्कूल के एक साल में अचीव कर सकते हैं। There are certain facts जो हमें जहन में रखने हैं। आपको याद होगा कि हमने मुख्तलिफ सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को कलेक्ट किया और हमने फिर सिफ्टिंग एंड सिलेक्शन कर ली, लेकिन अभी भी एक इशू बाकी है कि ये ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ सोर्सेज से आने की बिना पर मुख्तलिफ तरीकों से स्टेट किए गए हैं, यानी देयर इज ए वैरायटी इन द वे दे आर बीइंग स्टेटेड। इस चीज को क्लियर करने के लिए या अपने लिए आसानी करने के लिए और टीचर्स के लिए आसानी करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से हम स्टेट करें कि वो हमें क्लियरली बता दें कि हमें किस किस्म का लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना है और किस तरह से टीचिंग को प्लान करना है, सो दैट वी कैन अचीव देम सक्सेसफुली इन द क्लासरूम।